तो यहाँ देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ देख सकते हैं, इफ सपोज वी हैव टू वेव्स y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t plus phi, where a1 and a2 are individual amplitudes and phi is the phase difference between the waves at an instant when they are meeting at point I1 and I2 are intensities of the individual waves. Okay, so let's see the constructive interference. So what is constructive interference? Actually, meaning of constructive interference is the uh, uh, about the maximum intense point. So let's see what is this. You can see here, when the waves meet at a point with the same phase, constructive interference is obtained at that point. Same phase means phase difference between the two waves must be zero at a point. Then at that point the brightness will be the maximum and the interference that is take place at that point is known as constructive interference. So second point is the phase difference between the waves at point of observation, that is phi is equal to 0, or you can say phi is equal to 2 and pi like. Okay, so this is the phase difference, but generally we are taking 0. And third point is the path difference between the waves at the point of observation is delta is equal to n lambda, but it should be also 0. Actually, in the case of the constructive interference, in general we can take the phase difference like 2 n pi and the path difference like n lambda. Okay, but for n is equal to 0 it should be lambda, and phase difference is also 0. So if you take for so the angle 0, then 2 pi, then 4 pi, 6 pi, etc., these are the phase differences for the constructive interference, and 0, that is path difference, then lambda, then 2 lambda, then 3 lambda. Okay, so these are the path differences for the same means constructive interference. So now you can see the resultant amplitude at the point of observation will be maximum if a1 is equal to a2 and a is equal to 0. Minimum is 0, and maximum for a1 is equal to a2 is equal to a naught, that is 2a. So minimum can be 0 and maximum can be 2a if a1 and a2 are equal. This is the formula for intensity at any point. Okay, so if you look at about the equation, you can see here the I max is equal to under root I1 plus under root I2 whole square, and if this condition is satisfied, then you can write I max is equal to 2 I naught. Okay, so you can see here maximum intensity is 2 times I naught. Now you can see here the resultant amplitude. After the superposition of the given waves, resultant amplitude is given by a is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Okay, this is very important equation, and this is equation for the resultant amplitude. Okay, so for the interfering waves, y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin a2 cos omega t. The phase difference between them is 90 degrees. So the resultant amplitude a is equal to under root a1 square plus a2 square. Hence resultant intensity. So you can see here, we know that the intensity is directly proportional to the square of the amplitude. This one is very important equation. You can see here
This equation is most important. So you can write I1 is equal to some constant into A1 square. Similarly, I2 is equal to some constant into A2 square. So I is equal to some constant into A square, where K is proportionality constant. Hence, from the formula of the resultant amplitude, we get the following formula for the resultant intensity, that is I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference. So you can see here the term under root 2 I1 I2 into, sorry, the term 2 under root I1 I2 cos phi is called the interference term. This term is interference term actually. This part is interference term, and for incoherent interferences this term is 0, so resultant intensity is I1 plus I2 and it is constant. So if source is not coherent source means uh, if this part is 0, so you can see here I is equal to I1 plus I2. So let us now understand what is actually the coherent sources, and then we will study about the interference of light. So let's see coherent sources. So the source of light which emits continuous light wave of the same wavelength, same frequency and same phase having a constant phase difference is called coherent source. ठीक है, तो ये कोहेरेंट सोर्स की डिफिनीशन है कुछ कंडीशंस के साथ. आप देख सकते हैं ऐसे लाइट सोर्सेज जो कि कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स जो इमिट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम फेज की, और या फिर उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, उनको कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है. तो यहाँ देख सकते हैं व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी coming from two coherent sources travel in a medium in their same direction simultaneously, then due to their superposition at the same point intensity of light is maximum while at some other points it is minimum. This phenomena is called the interference. So student, what is meaning of interference? So let's see with the example. Suppose this one is light source, it emits lights up. Okay, so when two waves of exactly same frequency travel in a medium, so let's see about the two wave. If this one is one wave and this one is second wave, if two waves of exactly same frequency coming from the source travel in a medium, so you can see these two are traveling in a medium in the same direction, you can see these two are traveling in the same direction simultaneously, then due to their superposition, so due to their superposition at some point intensity of light is maximum while at some other point intensity is minimum. So at some point the intensity, if you are plotting graph intensity versus distance, you will get like this. So at some point intensity is maximum, at some point it is minimum, you can see. Okay, this phenomena is called interference. So you can plot the graph like this. At some point it is maximum and then it is minimum, maximum, minimum, maximum, like this. So this phenomena is actually known as the interference of light. Okay, so क्या होता है देखिए, जब किसी मीडियम में दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो क्या होता है मीडियम के कुछ पॉइंट्स पे ब्राइटनेस लाइट की मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पॉइंट्स पे जो ब्राइटनेस है वो मिनिमम हो जाती है. इसी फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. बट इसके लिए कंडीशन है कि दोनों वेव्स जो हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो या तो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. ठीक है, और उनके बीच फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो या कांस्टेंट होना चाहिए और वो दोनों सेम डायरेक्शन में चले. अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाए तो क्या होता है, मीडियम में इंटरफेरेंस होता है. इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो ब्राइटनेस है वो कुछ पॉइंट पे बढ़ जाती है, कुछ पॉइंट पे कम हो जाती है. इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अगर एग्जांपल्स की बात करें इंटरफेरेंस के, तो आपने एग्जांपल्स में देखा हुआ है
जैसे कि आपने कलरफुल सोप बबल्स देखे हैं, कलरफुल सोप बबल्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिखते हैं। फ्रिंजेस जो आप यंग्स मॉडलेस एक्सपेरिमेंट में, सॉरी यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो आपने देखा हुआ है फ्रिंजेस, वो फ्रिंजेस भी इंटरफेरेंस की वजह से बनती हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं, इनको आप ध्यान से याद रखेंगे। एक वाटर बॉडी है या कोई बकेट के अंदर वाटर है, उस पर अगर ऑयल गिर जाए तो वो कलरफुल दिखता है। तो ये सब इंटरफेरेंस के एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें इंटरफेरेंस की, तो आप देख सकते हैं इंटरफेरेंस के टाइप्स में आपको मिलेगा, दो टाइप के इंटरफेरेंस मिलेंगे। एक होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। When the waves meet at a point with the same phase, constructive interference is obtained at that point with maximum light. Okay, then second condition is phase difference between the waves at point of observation is 0 या फिर 2n pi. Third, the phase difference between the waves at the point of observation is n lambda. Now next one is resultant amplitude at a point of observation will be maximum for this, and if a1 is equal to a2 is equal to a naught, it is equal to 2 a naught. And finally resultant intensity at the point of observation will be maximum. These are the about constructive interference. Now let's see about destructive interference. So when the waves meet a point opposite phase, destructive interference is obtained at that point minimum light, or you can say there is absence of light. Then for this phi should be equal to like this 2n plus 1 into pi, this like this, and path difference delta is equal to 2n minus 1 lambda by 2 odd number, or you can say odd multiple of lambda by 2. Now you can see this one is the path difference. Now the resultant amplitude at the point of observation will be minimum for a mean a1 minus a2, or it is equal to 0. And finally you can see resultant intensity at the point of observation will be minimum if I mean is equal to I1 plus I2 minus 2 under root I1 I2. So I mean is equal to under root I1 minus I2 whole square. So if you take I1 is equal to I2 is equal to I0, then I mean is equal to 0. So if I1 I2 is not equal, so it is not 0. So it depends on the intensities of the I1 and I2. If these two are equal, then definitely it is 0. So now you can see here very important derivation. The resultant intensity due to two identical waves. So for two identical waves I1 and I2, you can write like this: I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi. Now for if I1 is equal to I2 is equal to I0, so you can write here I is equal to 2 I0 plus 2 under root I0 into I0. Finally you get 4 I0 into cos square phi, and you can write this equation like this one. So you can write this like this. Okay, so this one is very important derivation, you should
remember this one. This one is very important. Okay, so we will complete the topic further in next class. तो देखिए हम लोग जो है कि देख रहे हैं यहाँ पे हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में. Huygens principle is geometrical construction which is used to determine the new position of wavefront at a later time for its given position at any instant, and in other words, the principle gives the method to know how light is spread out in the medium. Huygens principle is based on the following assumptions. तो अभी आपको बताया गया है कि जो हाइगेंस प्रिंसिपल है वो एक तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है और दूसरा इस बात को बताता है कि लाइट कैसे मीडियम में स्प्रेड होती है, और ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जो इन बातों को बताता है. इसके ये एजम्पशंस हैं, तो देखते हैं एजम्पशंस क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं. फर्स्ट है ईच पॉइंट ऑन द गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. तो सभी पॉइंट जो कि वेव फ्रंट पे होते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी वेवलेट जैसे वेव करते हैं, सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन, और वहाँ से सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में डिस्टर्बेंस को सेंड करते हैं आउटर डायरेक्शन में. जैसे कि मान लीजिए ये कोई सोर्स है, अभी ये वेव फ्रंट हुआ तो यहाँ का जो एक ये पॉइंट है ये भी एक लाइट सोर्स जैसा बिहेव करेगा और सभी पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज को इमिट करेगा. ऐसे यहाँ वाला पार्टिकल्स ऐसे चलेंगे सभी, ठीक है. और सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है. तो जो वेव फ्रंट है उसकी न्यू पोजीशन को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं, एंड इट इज़ इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट. और ये क्या होता है, वेवलेट होता है, इसी को सेकेंडरी वेवलेट भी कहते हैं. तो अब देखिए इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है ये चीज़ें. तो यार देखिए, द एबव टू एजम्पशंस आर नोन एज हाइगेंस प्रिंसिपल और हाइगेंस कंस्ट्रक्शन. तो ये जो दोनों एजम्पशंस हैं इन्हीं को हाइगेंस प्रिंसिपल और हाइगेंस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल कहते हैं. अब इसको देख लेते हैं ये डायग्राम से, ठीक है. तो देखिए ये डायग्राम में ये है पॉइंट, ये क्या है, एक सरफेस है जो कि ए बी है. ये एक वेव फ्रंट का सरफेस है जिसपे बहुत सारे पॉइंट ब्लैक स्पॉट से दिखाए गए हैं. इन सभी पॉइंट से देखिए सभी पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे आगे बढ़ेगी, और सी इंटू डेल्टा टी टाइम के बाद, इन सभी से सी इंटू डेल्टा टी टाइम के बाद ये लाइट ऐसे चलेगी. तो आपने ये ड्रॉ किया, इसी को इन्वेलप कहते हैं ये जो है, ठीक है. एक कर्व टाइप का टेंजेंट है. एक्चुअल में 3 डायमेंशन में अगर बात करें, आप इमेजिन करिए ये बॉल्स रखे हुए हैं, ये देखिए बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये बॉल रखे हुए हैं. तो इन सभी को टच करते हुए जब आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एक्चुअल में एक प्लेन जैसा होगा और कर्व होगा. इसी टाइप के टेंजेंट को इन्वेलप कहा जाता है. तो ये जो इन्वेलप है यही न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट को प्रेजेंट करता है. तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ज़रूर पॉइंट सोर्स से निकला होगा वेव फ्रंट, इस टाइप का बन रहा है. तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल नहीं है बल्कि स्फीयर का पार्ट दिख रहा है, तो ये किसी पॉइंट सोर्स से निकला होगा. अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड केस में ये जो पार्ट है, अगर आप देखें ये प्लेन है, इसका मतलब ये या तो स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का पार्ट है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे सभी जो बॉल्स हैं वो एकदम एक ही लाइन में रखे हुए हैं. तो इन सभी बॉल को टच करते हुए एक प्लेन जब आप ड्रॉ करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, तो ये प्लेन भी न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट को प्रेजेंट करेगा. बट ये है कि ये एक पार्ट है किसी बहुत ही बड़े स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का. तो आप देख सकते हैं ये कैसे बनाते हैं इसको, यहाँ पे फिगर से क्लियर हो रहा है. अब की पॉइंट देखिए क्या है इसमें. की पॉइंट ये है कि हाइगेंस प्रिंसिपल इज सिंपली ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट ए लेटर टाइम. तो जो हाइगेंस प्रिंसिपल है वो एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जो कि किसी न्यू टाइम पे
वेव फ्रंट की पोजीशन को जानने के लिए और कैसे लाइट स्प्रेड होती है मीडियम में उसको जानने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आपने क्लास 11th में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, when two or more than two waves superimpose over each other at a common particle of medium, then the resultant displacement y of the particle is equal to the vector sum of the displacement y1 and y2 produced by the individual wave, that is y is equal to y1 plus y2। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, यहाँ से कोई वेव आती है, तो इस पार्टिकल का इस लाइन से ऊपर सपोज कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है x, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये फर्स्ट वेव की वजह से। सपोज दूसरी वेव आती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है x1 वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कहता है कि जब दोनों वेव एक साथ मीडियम में चलेंगी तो इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर x प्लस वेक्टर x1। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ये लाइन है, यहाँ से वेव चलती है, तो ये पार्टिकल फर्स्ट वेव से इस डायरेक्शन में x डिस्प्लेस होता है वेक्टर फॉर्म में। सपोज सेकेंड वेव के आने से सेम पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है x1। ठीक है, तो अगर ये दोनों वेव एक साथ चलें, पार्टिकल यहाँ पे है और दोनों वेव एक साथ चलें, तो इस पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो होगा x वेक्टर प्लस x1 वेक्टर। वेक्टर में तो होगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे x और इधर x1 है, इस फॉर्म का हमने इमेजिन किया था, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो रहे होते दोनों वेव से, तो ये x प्लस x1 होता। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिकली इसी बात को। देखिए, कोई पार्टिकल अगर किसी एक वेव की वजह से y1 डिस्प्लेस होता है, दूसरे वेव की वजह से वही पार्टिकल y2 डिस्प्लेस होता है, तो अगर दोनों वेव मीडियम में एक साथ चले तो वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होगा, y1 प्लस y2। इसी को यहाँ पे ग्राफिकली दिखाया गया है वेव के फॉर्म में। देखिए, पार्टिकल फर्स्ट वेव से इतना डिस्प्लेस हुआ जो कि 1 से दिखाया गया है, सेकेंड वेव से जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेव 2 से दिखाया गया है। तो अगर दोनों एक साथ चले तो ये रिजल्टेंट बनेगा जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसी का सेकेंड कंडीशन है। अगर फर्स्ट वेव से पार्टिकल इस टाइप का डिस्प्लेस होता है, सेकेंड वेव से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो दोनों के इफेक्ट से ये कैसा डिस्प्लेस होगा, y1 माइनस y2 टाइप का होगा, मतलब कि इस टाइप का बन जाएगा रिजल्टेंट इसका। इसी को यहाँ पे वेव से दिखाया गया है। मान लीजिए कि पार्टिकल पहले डिस्प्लेस होता है किसी डायरेक्शन में, उसको वेव 1 से दिखाया गया है। फाइनली डिस्प्लेस होता है इस टाइप का। इन दोनों के एम्पलीट्यूड हालांकि सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा, तो ये वाला एम्पलीट्यूड इसको ग्रेटर मानिए, ये बी है, इसको लेस मानना होगा आपको। देखने में भले ही दोनों इक्वल लग रहे हो, बट इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर है, इधर कम है, तो रिजल्टेंट ऐसे, ये डॉटेड लाइन जो है ऐसे चलेगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, जो कुछ भी होता है इन सभी को एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। तो फेज पहले देखते हैं क्या होता है। द आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन इन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द फेज फॉर डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। In this equation the term omega t is phase और इंस्टेंटेनियस फेज। तो यहाँ पे ये जो साइन का आर्गूमेंट है इसी को फेज कहते हैं मैथमेटिकली, इसी को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए फेज डिफरेंस फाई,
कई बार इसको इंस्टेंटेनियस फेज कहते हैं, ठीक है। और फेज डिफरेंस का टर्म भी आएगा जब दो वेव चलती हैं एक साथ, तो वहाँ पे फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो देखते हैं फेज डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द फेजेस ऑफ द टू वेव्स एट अ पॉइंट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस इफ़ y1, अगर देखिए y1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी हो और y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये जो साइन का आर्गूमेंट है उनका जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं फेज डिफरेंस। तो अगर आप देखें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है, फाइव वन हुआ आपका ओमेगा टी और फाइव टू क्या हुआ, फाइव टू हुआ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो डेल्टा फाइव क्या होगा, तो डेल्टा फाइव होगा फाइव टू माइनस फाइव वन। तो देखिए फाइव टू माइनस फाइव वन करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल होगा, बचेगा फाइव। तो यही आपका फेज डिफरेंस हो गया। तो अगर आपके पास टू या मोर देन टू वेव्स हैं तो उनके जो साइन है, उनके जो आर्गूमेंट का डिफरेंस हुआ उसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस केस में ये ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाइव, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही फेज डिफरेंस फाइव होता है। अब देखते हैं पाथ डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ ऑफ द टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट दैट पॉइंट ऑल्सो, इसको डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। और पाथ डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है और फेज डिफरेंस पता है तो आपके पास रिलेशन है डेल्टा इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा फाइव। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाथ डिफरेंस। और आपके पास एक और रिलेशन मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग टाइम डिफरेंस। सो टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज डिफाइंड लाइक दिस, टी बाई टू पाई इंटू डेल्टा फाइव, ये है टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो टू वेव्स के बीच टाइम डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं टी बाई टू पाई इंटू डेल्टा फाइव। तो देख लीजिए यहाँ पे जो थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपने देखा कि ये ओमेगा टी और ये जो इसी को इंस्टेंटेनियस फेज कह रहे हैं। जब दो वेव या मोर देन टू वेव्स है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फेज डिफरेंस का। तो अगर टू वेव्स हैं तो दोनों वेव्स के जो इक्वेशंस हैं उनके साइन के जो आर्गूमेंट है उनका जो डिफरेंस होगा उसको आप वहाँ पे फेज डिफरेंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक y1 ये इक्वेशन है और दूसरा y2 का इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये जो आर्गूमेंट है और इस यहाँ पे ओमेगा टी, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा फाइव। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइव हो गया, ठीक है। और अगर आपको पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो फिर आपके पास एक फार्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा कि पाथ डिफरेंस के लिए आप यूज़ करते हैं ये फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से आप पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वह लैम्डा क्या है, तो यहाँ पे लैम्डा वेव का वेवलेंथ है, ठीक है। आप सभी को पता होगा वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ की डिफिनीशन याद करना है। आपको पता है कि अगर ये कोई वेव है तो टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रेस्ट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर ट्रफ। एक तो ये डिफिनीशन है। दूसरी स्टैंडर्ड डिफिनीशन ये है कि मान लीजिए कोई वेव है तो दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में हों उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो आप कह सकते हैं वेवलेंथ इज़ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो यहाँ पे ये देखिए अगर ये कोई वेव है तो इसमें जो पार्टिकल यहाँ पे इसका वाइब्रेशन एग्जैक्टली यहाँ वाले जैसा होता है और इसका एग्जैक्टली यहाँ वाले जैसा होगा, लेकिन ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं
तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए ये है, तो इसका कंसेक्यूटिव यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से वेवलेंथ यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग। अगर डाउनवर्ड में आप देखना चाहें तो आप इस ये वाला है, तो इसका कंसेक्यूटिव इसके जैसा सेम फेज में पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में चल रहा है ये, जबकि ये डाउनवर्ड चल रहा है और ये भी डाउनवर्ड चल रहा है। तो ये दोनों सेम फेज में हैं और इसके बाद आगे फिर से यहाँ पे मिलेगा, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, तो इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको वेवलेंथ लैम्डा कहेंगे। तो आप सिंपली कह सकते हैं वेवलेंथ लैम्डा इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। बहुत ही अच्छी डिफिनीसन है, ठीक है। इसके बाद टाइम डिफरेंस के लिए अगर आपको देखना है तो आप ये फार्मूला देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओमेगा इंटू फाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, या फिर T/2 पाई, सॉरी ये ओमेगा बाई नहीं होगा, ये ओमेगा को अपॉन में करके करना होगा। तो अगर आप चाहें तो उस फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर T/2 पाई इंटू फाई से कर सकते हैं इसको टाइम डिफरेंस, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/T, तो आप यहाँ पे 1/ओमेगा के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं T/2 पाई। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू फाई। तो इस फॉर्म का आप चाहें तो लिख सकते हैं ओमेगा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये है इक्वेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी इक्वेशंस पे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, इन सभी जो भी ये फार्मूलेज हैं, ठीक है। अब यही फार्मूला इसमें आप चाहें तो यहाँ से आपको फेज डिफरेंस पूछा जा सकता है, पाथ डिफरेंस गिवन होगा तो, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस गिवन होगा तो आपको फेज डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म के आते हैं कि आपको डायरेक्ट पाथ डिफरेंस दिया होगा और आपको फेज डिफरेंस निकालना होगा, टाइम डिफरेंस दिया होगा, फेज डिफरेंस निकालना होगा। तो अगर आपको ये सारे फार्मूले याद है तो आप आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे देख लीजिए फार्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चन भी सॉल्व करिए।